Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss When We Two Parted. It was written by the Lord Byron, George Gordon. He was the romantic poet and included in the second generation, and he was also the poet, also politician, and the famous personality who is famous for his revolutionary thought, especially from the perspective of the Greek independence war against the Turkey. यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूँगी. Theme of this poem is the love and disillusionment. He expressed his own autobiographical element, that is his life experience. Love for the beauty is important trait of the romantics, so he combined the love for the beauty and combined with the personal life experience in the realistic manner. And he wrote that poem when he listened about that his ex-lover had another affair with the Duke Wellington, or he was the British Army officer who defeated the Napoleon Bonaparte. So he wrote this poem, which shows the pain, agony, and despair of the Lord Byron. And he was telling in this poem that when we two parted in the silence and the tears, how broken hearted to swear for the years. Okay, when I listened about the affair of Lady Francis with another guy, then it meant that there is the end of our previous relationship, and I'm feeling so much in the pain and agony and despair, and because I love you so much, although our relation was in the secret. Reason maybe is that they have the extramarital affair, और extramarital affair की वजह से they couldn't speak openly. So रीज़न इज़ दैट कि जब लॉर्ड बायरन को उनके अफेयर का पता चला, तो ही couldn't express his feeling and emotion outwardly in the society. He just listened about the Lady Francis affair with the Duke. He just expressed his feeling and emotions through this सॉन्ग. एंड वो कहते हैं कि टू स्वेयर फॉर द ईयर पेल ग्रो द चिक एंड द कोल्ड कोल्डर डीकेस. वो कहते हैं यहाँ पे कोल्ड कलर जो होता है, हमेशा कोल्डनेस जो होती है चिल डेथ का एलिमेंट समझी जाती है. वो कहते हैं कि ये उसके जो चिक्स थे, उसकी फिजिकल जो ब्यूटी, बेसिकली वो यूज़ करेंगे फिजिकल ब्यूटी को उसके एज अ इमेजरी क्रिएट करने के लिए, जो उनके अफेयर और लेडी फ्रांसिस के दरमियान में था. तो वो कहते हैं उनके चिक्स का पेल ग्रू होना ये इस बात की अलामत है कि मेरा जो रिलेशनशिप लेडी फ्रांसिस के साथ एंड हो गया है, और मैं इस वक्त पेन, डिसल्यूजनमेंट, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल जो कहते हैं ना ट्रोमा में से गुजर रहा हूँ. और ट्रूली दैट फॉर टोल्ड सोरो, अब और सिर्फ तकलीफ और दुख है और रिग्रेट है कि आई लव्ड यू. The dew of the morning sunk chill on my brow. It felt like a warning of what I feel now. वो कहते हैं कि जिस तरह सुबह के वक्त शबनम के कतरे जो मेरे माथे पर पड़े हैं, वो मेरी पशेमानी और मेरी शर्मिंदगी का एहसास है, और मेरे लिए एक वार्निंग है और ऑफ व्हाट आई फील. और ये रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट आई फील, कि आई एम not feeling well about this relationship. I am feeling regret and shame on this. The vow are all broken and all light the fame. और जितने भी हमने कस्में या वादे किए थे वो सब के सब टूट चुके हैं. With the end of this relationship, everything has been finished, क्योंकि he listened about the Lady Francis relation with the Duke. इसी तरह वो कहते हैं hear the name this spoken and share in its shame. वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा नाम सुनता हूँ, द पीपल वर डूइंग द चैट एंड दे वर डूइंग गॉसिप अबाउट यू एंड दैट गाय, तो मैं बहुत ज़्यादा शेम महसूस कर रहा हूँ कि इवन मैं जुर्रत भी नहीं कर पाता कि तुम्हारा नाम जो है मैं अपनी ज़ुबान के ऊपर लेके आऊँ और अपने दुख और तकलीफ़ को शेयर करूँ, जस्ट ड्यू टू द रिग्रेट एंड द शेम. ठीक है, बेसिकली वो एक तरह से जो है अपने एक्स लवर लेडी फ्रांसिस के साथ अपने बिटर एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं और अपने डिसइंटीग्रेशन ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और कन्फ्यूजन है कि कन्फ्यूजन का भी शिकार नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी रिप्रेजेंट हो रही है, उनकी एग्नी, उनकी डिसअपेयर, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उनकी अल्फाज के अंदर आपको नजर आएंगे. द नेम दी बिफोर मी द नाइट टू माइंड एयर आई शडर कम्स ओवर मी द वर्ड डू सो डियर दे नो नॉट I knew thee who know thee too well, long shall I rue thee too deeply to tell. अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे जब तुम्हारा आवाज़, तुम्हारी जो बारे में जो बातें हैं मेरे कानों तक पहुँचती हैं, तो वैसे महसूस होता है जैसे साउंड ऑफ द बेल होती है जो इरिटेट करती है,
चर्च की जो साउंड बेल की तरह जाके क्लिक करती है मेरे कानों में। बिल्कुल इसी तरह की तकलीफ और दर्द मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ जब पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट यू एंड द दूक। दे नो, वो बार यहाँ पे बहुत सी जगह पे वो रेपिटिशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज की। वो कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग शेल आई रोदी डू डीपली टू टेल। कहते हैं मेरा तुम्हारे से रिलेशन बहुत लंबे अरसे तक था और मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझता था, तुम्हें अंडरस्टैंड करता था, लेकिन इतना टू डीपली टू टेल यू दैट, इतना इतना गहराई से तुम्हें जानता था कि आई कांट एक्सप्लेन इट। लेकिन विद द विद द फेयर ऑफ अनदर गाय एवरीथिंग हैज़ बीन फिनिश्ड। बेसिकली ये सारी जो पोम है आपको बार बार वहाँ पे रेपिटिशन नज़र आएगी और एनाफोरा का इस्तेमाल होगा, प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया, आई वुई का इस्तेमाल। जब आई और वुई का इस्तेमाल किया जाता है तो बेसिकली जो स्पीकर होता है वो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को डिपिक्ट कर रहा होता है। पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल जब वो कर रहा होता है और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट डिपिक्स करता है। कहते हैं इन सीक्रेट वी मेट इन द साइलेंस आई ग्रीव दैट द हार्ट कुड फॉरगेट द स्पिरिट डिसीव। कहते हैं क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ही हिडन फॉर्म में था, हमने सीक्रेटली रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ था। सो अब मुझे ये जो ग्रीफ और जो पेन और एग्नी और डिसअल्यूजनमेंट का सामना करना पड़ रहा है वो अब मैं जो है अब अकेले ही करूँगा और खामोशी के साथ इस सब चीज़ों को बर्दाश्त करूँगा। एंड दैट दी हार्ट कुड फॉरगेट, और मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगा द स्पिरिट डिसीव, कि किस तरीके से तुमने मुझे धोखा दिया। इफ़ आई शुड मीट दी आफ्टर लॉन्ग ईयर हाउ शुड आई ग्रीट दी विद साइलेंस एंड टीयर। कहते हैं कई सालों बाद जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें कैसे एड्रेस करूँगा, इससे पहले तो तुम मेरी लवर, मेरी डियर थी, लेकिन अब जबकि तुम्हारा रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन है तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि मैं इतने, जब कई साल गुजरेंगे और फिर मेरा और तुम्हारा सामना होगा तो क्या होगा, होगा ये कि मैं खामोशी के साथ आंसू बहाऊंगा और तकलीफ को बर्दाश्त करूंगा। सो दिस इज़ द पोम अबाउट द लॉर्ड बायरन।